Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 14, the atmosphere. In this chapter, earlier we have discussed about what is the meaning of atmosphere, what is the composition of atmosphere, and last lecture we have discussed about the layers of the atmosphere, 5 layers which we have discussed. After the photosynthesis and difference between climate and weather, all topics we have discussed. Today's topic is temperature. What is the topic of today? Temperature. Now about the temperature, as you know that our planet Earth get the heat from the sun. All planet in the solar systems get heat and light from the sun. So this content is related to the sunlight. So listen carefully. I am explaining this topic according to your book temperature, page number 31. The sun provide heat and light known as solar radiation. जो भी sun हमें heat and light provide करता है, that's known as the solar radiation for all the planet in our solar system. All planet means all planets जो 8 planets we have, and all planets get the heat and light from the sun. The earth receives a tiny share of the solar radiations in the form of the mainly short waves that travel through the atmosphere and reach the earth surface. अब atmosphere की layers हमने की थी, we have discussed. So sun rays come to the earth from the different layers of the atmosphere. After that we realize that, and this solar energy received by earth is called isolation. देखिए isolations, what is the meaning of isolations? Isolations means the solar energy received by earth, जो solar energy which solar energy received by earth, जो sunlight हमें मिलती है, it's known as isolation. The solar energy received by the earth, isolation, incoming solar radiations, amount of the heat received in the maximum near the equator decrease into the pole. यहाँ देखिए, this is our earth, ये हमारी sunlight, ये हमारे sun rays है, and this is equator. Listen and watch carefully. This is equator. So this line is saying that the amount of heat received by the earth, जो भी amount है, ये sun rays है, received by the earth is received by the maximum near the equators and the decrease near the pole. अब यहाँ देखिए, ये हमारा equator है. So sun rays direct fall on the equator. यानी कि जो equator ये zone है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? हीट. सबसे ज्यादा क्या होती है? हीट. बट जैसे जैसे हम पोल के लिए होते हैं पोल एरिया, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, बोथ यहाँ पर भी जाएगी टॉरिड जोन में डायरेक्ट, यानी इंक्रीज होती है हीट. और जैसे जैसे एज द लैटिट्यूड्स, हम जैसे जैसे लैटिट्यूड्स के ऊपर जाएंगे, लैटिट्यूड होते जाएंगे, सो सन रेज डोंट फॉल डायरेक्टली, दे आर स्लैंटिंग सन रेज. सो there is a less heat, there is a decrease the temperature, and temperature increase in the equatorial area. Clear? एक बार फिर से, this is the earth, this is equator. Equator area as receive maximum heat of the sun, and pole area receive the little amount of the sun heat. Now next topic is our measurement of temperature. How can you measure the temperature when you got the fever? हमें fever होता है, so हम किससे measure करते हैं हमारा body का temperature? Yes, it's thermometer. So thermometer is the instrument which measure our temperature. 2 degrees में है, देखिए इसका, it express the unit of degrees on the Celsius and Fahrenheit. Both are the unit of measuring. Celsius में भी कर सकते हैं, Fahrenheit में भी. Fine. So it is the measurement of temperature. Now today's topic is factors affecting the temperature. Which factors? Now we are talking about the earth. Fine. Atmosphere.
सो विच फैक्टर इफेक्टिंग द टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर्स को विच फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकेंड इज एल्टीट्यूड, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, prevailing winds, ocean current, and slope of the land. These are 6 factors which we are going to discuss today. So first I am starting with the latitude. So first I am explaining the what are the latitudes. In the globe chapter you have discussed there are 2 imaginary lines on the globe. First is latitude and second is longitude. So first look this is the globe model of the earth. This is equator. It is the longest latitude which divide earth into 2 parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Fine. यहाँ लिख देंगे नॉर्थ, यहाँ लिख देंगे साउथ. These are the, ये ऐसे शेप में होते हैं. These are the latitude. Fine. These are the latitude. So our topic is latitude, factor affecting the temperature. Now how the latitudes affect the temperature of that place as we go higher. ठीक है. This is सन की लाइन सीधी आती कहाँ पर? अर्थ पे. इक्वेटोरियल जोन, यहाँ पे 3 जोन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज द टॉरिड जोन. फाइन. नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है. ठीक है. इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन. सो दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट ऑफ द सन. क्योंकि ये सन के सामने होता है इसलिए यहाँ पर जो सन रेज आती है डायरेक्ट आती है. कैसी आती है सन रेज? जो रेज आती है सन रेज वो कैसी आती है? डायरेक्ट. फाइन. नाउ एज वी गो हायर लेवल, यानी जैसे जैसे हम अपर लेटीट्यूड्स पर आते हैं फ्रॉम द नॉर्थ साइड एंड फ्रॉम द साउथ साइड ऑल्सो, सो सन रेज फॉल स्लैंटिंग. कैसे गिरती है? स्लैंटिंग. यहां पर भी और यहां पर भी. फाइन. सो टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज. सो पर्टिकुलर लैटिट्यूड, जो पर्टिकुलर कंट्रीज या एरियाज है वो किस लैटिट्यूड में आते, कितने हायर लैटिट्यूड में या फिर कितना नीचे है, कहां से? इक्वेटर से. इस पे डिपेंड करेगा कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द, जैसे यहां पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है लैटिट्यूड, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का इंपोर्टेंट लैटिट्यूड. यहां पर आता है हमारा इंडिया. दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लैटिट्यूड विच डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट 2 हाफ. हमारे इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 हाफ में. अब ध्यान से देखेंगे जो भी एरियाज हैं टॉरिड जोन के अंदर नीचे आ रहे हैं और कुछ एरिया आ रहे हैं ऊपर. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या डिस्टेंस से जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वैसे वैसे क्लाइमेट कैसा, माउंटेन एरिया आ जाता है. क्लाइमेट कैसा हो जाता है? ठंडा. जैसे जैसे यहाँ आते हैं गर्मी और नीचे आते हैं तो ज्यादा हीट बढ़ जाती है. तो जो लैटिट्यूड कि उस पर्टिकुलर कंट्री या प्लेस की पोजीशन किस लैटिट्यूड पे आती है, इट्स डिपेंड द टेम्परेचर कि वहां का टेम्परेचर कैसा होगा. क्लियर है? नाउ सेकंड आई एम एक्सप्लेनिंग द एल्टीट्यूड. सो अबाउट द एल्टीट्यूड I am explaining from the book. Now altitude means higher level. Fine. Temperature decrease and increase in height at the normal lapse rate of, अब यहाँ पे कितना lapse rate है देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 1 डिग्री सेल्सियस कितने पे? एवरी 165 मीटर. यानी जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतना उतना टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ऊपर जाते हैं तो कम होता है, नीचे आते हैं तो ज्यादा होता है. कहां से? इक्वेटर से. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि कौन सा एरिया का डिस्टेंस सी से कितना है. सो वाटर मेक्स मोर टाइम टू ऑब्जॉर्व द insulations and more time to the radiate the same heat.
जो वाटर है उसे बहुत टाइम लगता है सन हीट को लेने में, उतना ही टाइम लगता है उसे ठंडा करने में और गर्म करने में, दोनों चीजें। देयरफॉर कोस्टल एरिया एंजॉय द मॉडरेट एंड द इक्विलेबल क्लाइमेट, इसलिए वहां का एरिया कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट, ना तो वहां पे गर्मी होती, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, मॉडरेट क्लाइमेट। Where summer heat is the less intense and water temperature are the milder. In the contrast, place away from the sun and set to have the extreme or the continental climate. अब जैसे जैसे एरिया है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जो है उसका डिस्टेंस जो है सी से बहुत दूर है, तो यहाँ पे वाटर नहीं है जो हीट को अब्सॉर्ब कर ले और फिर उससे वापस से गर्म, दोनों चीजें नहीं होती, तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, एक्सट्रीम। कैसा होता है, extreme. Extreme means very hot in summer and very cold in winter. And moderate means not too cold, not too hot. Now next topic is the prevailing wind. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, ध्यान से देखेंगे इसे। Prevailing winds, now winds होती है हवाएं। So winds always transport temperatures conditions to place through the origin to land over the which they blow. जैसे विंड होती है उससे टेम्परेचर क्या होता है, कम भी होता है, ज्यादा, विंड से भी डिपेंड है, जैसे लू है, हॉट विंड है, कई बार हवा आती है तो अपने साथ मॉइस्चर लाती है तो उस प्लेस को क्या कर देती है, ठंडा। फॉर एग्जाम्पल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट डेजर्ट आर हॉट एंड पोलर रीजन्स आर कोल्ड। जैसे राजस्थान एरिया की मैंने बात की, लू अगर गर्म एरिया से तो गर्म करती है और अगर पोलर एरिया से आ रही है तो ठंडा करती है। तो वो जो विंड्स हैं किस एरिया से आ रही है उससे उस एरिया का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर। क्लियर। नाउ ओशियन करंट। ओशियन करंट सभी को पता है, ओशियन क्या होता है, ओशियन को कहते हैं हम जो वाटर बॉडीज होती है लार्ज। द वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया। यहाँ पर भी दोनों तरह का ओशियन करंट है, वार्म भी है और कोल्ड भी है, दोनों ही, जो उस एरिया के टेम्परेचर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओशियन करंट ऑल्सो मोडिफाई द टेम्परेचर ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर देम। ओशियन करंट जो है टेम्परेचर उसको मॉडिफाई कर देता है। देखिए जो समुद्र में जो वेव्स चलती है, लहरें चलती है, उनमें एनर्जी होती है जिससे करंट जनरेट होता है। अब वो कैसी है, वार्म है तो टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म, और कोल्ड है तो टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड। नाउ लास्ट, स्लोप ऑफ द लैंड। स्लोप्स पता है क्या होती है, स्लोप्स होती है ढलान, ठीक है, हिल एरिया पे होती है स्लोप एरिया। सो स्लोप ऑफ द लैंड इज ऑल्सो अफेक्टिंग द टेम्परेचर। In the mountain region, the slope of the south receive direct heat of the sun and are warmer in the compared to the slope of the north that are often unsuited to the agriculture. देखिए स्लोप एरिया में बताया गया है यहाँ पे जो डायरेक्ट सन हीट वहां पर उनको मिलती है एंड और वार्मर कंपेयर टू द स्लोप्स ऑन द नॉर्थ, और इसलिए वो एरिया क्या होते हैं, थोड़े से गर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, वैसे स्लोपिंग एरिया में एग्रीकल्चर होता है ताकि उस एरिया में जो रिवर्स फ्लो होती है या वाटर फ्लो होता है उससे उनको क्या मिल सके, इरिगेशन। तो स्लोप जो है वो भी किसको इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, सोलर एनर्जी जो होती है वो हमको रिसीव होती है, आइसोलेशन कहते हैं उसको। और दूसरा हमने किया मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर्स, थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट 2 डिग्रीज आर देयर। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग टेम्परेचर, व्हाट फैक्टर्स इफेक्टिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मैंने बताया इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, नॉर्थ और साउथ सेम चलेगा, नीचे और ऊपर टेम्परेचर। एल्टीट्यूड, जितना ऊपर होगा उतना टेम्परेचर ठंडा होगा, जितना नीचे आएंगे इक्वेटर के पास आएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी एरिया जो है जिसमें जो वाटर है वो अब्सॉर्ब कर लेता है हीट को, ज्यादा क्लाइमेट ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट। एंड दोज प्लेसेस आर फ्रॉम द फार फ्रॉम द सी, दे हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट वाज प्रिवेलिंग विंड्स, विंड से भी इफेक्ट करती है, ओशियन करंट जैसा भी बताया। नाउ नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लैंड। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द टेम्परेचर जो इफेक्ट करते हैं किसको, टेम्परेचर को। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हीट जोन, heat zone, torrid zone, temperate zone and freeze zone. So keep learning these things, measurement of the temperature factors which affecting the temperatures. Thank you and have a nice day.